Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I am going to discuss on the topic of relationships in Tableau. Relationships and Tableau. Okay, so let's say we have two tables. In the first table I have columns like flight ID and number of passengers. Okay, so 1, 2, 3, 100, 200 and then 400. Okay, then in another table we have columns like flight ID, okay, and then date and then origin. Okay, so let's say we have these two tables. In this also I have flight IDs like 1, 1, dates like first Feb, second Feb, and origin. In the origin column I have values like EWR and EWR here. Okay, so here ये table origin की column wanted to number. Okay, so for example, let's suppose we want to have number of passengers for each flight ID. We want to, let's say we want to show, let's say we want to fetch the total number of passengers for each employee ID. Fetch the total number of passengers for each flight ID. Total number of passengers for each flight ID. Okay, so how are we gonna do that? Let me just see that. So here I have these two tables. Okay, so अब मैं इसमें क्या चाहूँगी कि मुझे नंबर ऑफ पैसेंजर चाहिए हर फ्लाइट आईडी के, तो मेरे को यही चाहिए कि या तो पैक्स का कॉलम जो है वो इधर आ जाए. ठीक है, पैक्स का कॉलम मैं यही चाहूँगी ना इधर रहता है, तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकल पाएंगे. व्हाट आई वांट कि पैक्स का कॉलम यहाँ आ जाए. ठीक है, पर अगर मैं ज्वाइन का यूज़ करूँगी ना, और अगर इसमें अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन एंड अर्जेंट कुछ भी लगा दूँ तो भी क्या होगा, मेरे आउटपुट में यहाँ पे पैक्स का अगर ज्वाइन लगाने के बाद यहाँ पर भी 100 आ जाएगा और यहाँ पर भी 100 आ जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो जाएंगे फॉर फ्लाइट ID 1 200. बट दिस इज़ नॉट ट्रू बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स और फ्लाइट ID 1 तो मेरे 100 है. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मेरी यहाँ पे डुप्लीकेसी हो गई इधर को, और मेरा जो आउटपुट है वो गलत आ गया. फर्स्ट टेबल और आप इसे देख के बता सकते हैं. देखो फर्स्ट टेबल मेरी लेवल ऑफ डिटेल है टिल फ्लाइट ID, इसमें मेरी लेवल ऑफ डिटेल है टिल फ्लाइट ID, और इसमें मेरी लेवल ऑफ डिटेल है टिल डेट. ठीक है ना, तो लेवल ऑफ डिटेल जो है वो मेरी डिफरेंट है. इसमें मेरी डेट तक बात हुई है, इसमें से फ्लाइट ID तक. तो जब भी हमारी लेवल और डिटेल डिफरेंट होती है ना, तो हम जॉइंट्स को प्रेफर नहीं करते, बिकॉज अगर मैं इसमें जॉइंट्स का यूज़ करूँगी तो मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा आंसर गलत आएगा. ठीक है, सो इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ सिनेरियो. ठीक है, ठीक है, सो दिस इज वी हैव द concept of relationship with us. So here we have come up with the drawback of join, which is duplicacy, and that's why we have introduced relationships in Tableau. Okay, so this is the drawback of join. This is the drawback of joins, which is duplicacy. Okay,
In the first table, label of detail is still flight ID. In the second table, the label of detail is still flight ID and date. So for one, we get 200 passenger, which is not true using join. So that is a relationship is introduced, and drawback of the join is duplicacy. सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी टेबल 1 थी और ये मेरी टेबल 2 थी. अगर इसमें जॉइंस होता है, अगर हम टेबल में देखें तो ये वाला सिंबल लगता है, जैसे कि टेबल 1 है और ये मेरी टेबल 2 है, तो अगर ये जॉइंस होता तो ये इस तरीके से लगता. बट इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स, अगर मेरी टेबल 1 है और टेबल 2 है तो रिलेशनशिप में बन रहे तो इस तरीके का नूडल साइन आएगा. ठीक है, तो इट विल टेल tableau that these two tables are related but it will not create any type of join. What does this sign tell? It will tell tableau that these two tables are related, but it will not create any type of join. But it will not create any type of join. Okay. सो यही बताना था मुझे आपको थोड़ा. मैं आपको थोड़ा इसमें वो करके दिखाती हूँ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाती हूँ. ठीक है, सो लेट मी जस्ट ओपन माई tableau फर्स्ट. लेट मी जस्ट ओपन माई tableau फर्स्ट. लेट सपोज कि मैंने इसमें अब आई जस्ट रिमूव दिस डेटा सेट. just close this window maybe, then open tableau again. This time I'll take sample superstore file. I will just show you that what concept of relationships practically as well. That's what I want to show you. Okay, so here we have this. So I'll just take my sample superstore file. Just quickly take that. ठीक है, इसमें मेरे कॉलम है, ऑर्डर का है, यूनिक. जस्ट अभी मैं दिखाऊंगी आपको. ऑर्डर का है, रिटर्न्स का है. ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ऑर्डर और रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप बनाना चाह रही तो कैसे बनाऊंगी दिखाती हूँ. एक ने ऑर्डर को ड्रैग किया. अब ज्वाइन के केस में हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन करते थे और यूनियन के केस में हम जस्ट नीचे ड्रैग करते थे. जब ऑडियन साइन आ जाएगा इसका मतलब वो यूनियन हो जाएगा. रिलेशनशिप के केस में कुछ ओपन नहीं करना, बस यहाँ से लेके ऐसे कर देना ड्रैग. तो ये जो नूडल साइन बन गया इसका मतलब ये दोनों क्या है, रिलेटेड है. ठीक है, अब ये किससे रिलेटेड हो रहे हैं, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी से मैच हो रहा है. इन द डेटा के बाय डिफॉल्ट इट विल शो ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू ऑर्डर आईडी एंड द डेटा सोर्स विल शो इन द ऑर्डर्स टेबल, नॉट यूनिक रिटर्न टेबल. इट विल एग्रीगेट अकॉर्डिंगली, इट विल नॉट क्रिएट मैस. ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हो कि आपको सिर्फ ऑर्डर टेबल दिख रही है यहाँ पे डेटा सोर्स में, रिटर्न की टेबल नहीं दिख रही है. ठीक है, सो बट ऐसा नहीं है, रिटर्न की टेबल इसमें यूज़ होगी, ऐसा नहीं है. एग्रीगेशन इसमें अकॉर्डिंगली होगी और मैस ना क्रिएट हो. इस वजह से ये बस ऑर्डर की टेबल शो कर रहा है. अगर मैं आपको दिखाऊँ इसमें ऑर्डर की टेबल से, तो लेट मी जस्ट फर्स्ट रिमूव ऑल दिस. मैं आपको अगर इंडिविजुअली दिखाऊँ ना, जैसे ऑर्डर की टेबल है. ठीक है, अब मैं रिटर्न की टेबल ले आई.
रिटर्न की टेबल है तो मैं ऑर्डर की टेबल ले आई तो ऑर्डर का शो हुआ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो है मेरी बस ऑर्डर की टेबल दिख रही है और जो भी मतलब मेरी लास्ट में आएगी वो वाली टेबल। ठीक है, तो इन द डेटाबेस तो अब मैं आपको थोड़ा करके दिखाती हूँ तो क्या डिफरेंस है जॉइन में और इसमें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोज़ में लेके आई हूँ ऑर्डर आईडी को, ये देखो इसमें सब दिखेगा, ऑर्डर की टेबल अलग दिखेंगे आपको और रिटर्न्स के कॉलम अलग दिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑर्डर आईडी को लेकर आई हूँ रोज़ में। ठीक है, एंड देन फ़िल्टर में लेके आई हूँ मैं रिटर्न कॉलम को। टेक्स्ट में मैं लेके जाऊंगी सम ऑफ सेल्स को। फिल्टर में मैं लेके आई हूँ रिटर्न कॉलम को, इसमें से सिर्फ यस सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मेरा ये सब आ गया। सो इट विल डू दी एग्रीगेशन अप्रोप्रिएटली, इट विल नॉट गेट मैसअप, चाहे दोनों टेबल की लेवल और डिटेल डिफरेंट हो, अनलाइक जॉइन। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो होता है वो रिलेशनशिप का प्रोसेस चलता है। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इस तरीके से मेरा रिलेशनशिप वर्क करता है। मैं आपको एक बार एग्जांपल के को यूज़ करके भी एक बार थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। जैसे कि ये वाला जो मेरा केस था यार, जो मैंने कोई प्रॉब्लम दिखा, आपने इसमें देखा कि अगर मैं इस प्रॉब्लम में जॉइन का यूज़ करूँ तो मेरा आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, बट इस केस में अगर मैं रिलेशनशिप का यूज़ कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो मेरा आंसर सही आएगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ही दोनों टेबल है। ठीक है, और मैंने सपोज़ करो फ़्लाइट आईडी को ड्रैग कर दिया अपने व्यू में, तो उसके बाद इसमें नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स 100 ही दिखाएगा, बिकॉज ये इट विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैव ब्रॉट इनटू द व्यू एंड बेस्ड ऑन दिस इट विल डू द एग्रीगेशन। लेट्स सपोज so for example, let's suppose we have dragged flight ID into the view so based on flight ID it will do the aggregations, it will understand what we brought into the view, it will understand what we have, मतलब इतना इंटेलिजेंट होता है कि अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव ब्रॉट इनटू द व्यू, what we have brought into the view, and based on this it will do aggregation, and based on this it will give us correct results of aggregation, and based on this it will give us correct results of the aggregation। ठीक है, सो ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर मैंने मान लो फ्लाइट आईडी को ड्रैग किया, उसके बाद मैं पैक्स को ड्रैग कर रही हूँ, तो यह ऑटोमेटिकली आउटपुट मेरा 100 ही शो करेगा। ठीक है,
200 जो है वो नहीं शो करेगा. So this is the beauty of relationships, and that's the reason that why I have brought अगर जैसे इसमें मैंने ऑर्डर आईडी और सम ऑफ सेल्स ड्रॉ किया, ठीक है. ऑर्डर आईडी मैंने ऑर्डर टेबल से लिया है और इस वाली टेबल से और सेल्स लिया है, ठीक है. अब ऑर्डर आई इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, तो अब ये इसमें ये नहीं करेगा कि इट विल नॉट, मैंने आपको बताया था इसमें कि रिलेशनशिप में ये ज्वाइन नहीं क्रिएट कर देगा, कि ज्वाइन क्रिएट करके आउटपुट को बिगाड़ने देगा. अपने आप अंडरस्टैंड करके सम ऑफ सेल्स देगा और इसमें डुप्लीकेसी नहीं आएगी, ठीक है. सो इट विल नॉट क्रिएट ज्वाइन, it will tell tableau that these two tables are related, but it will not create any type of join. So go for relationships, इनका सेम पर्पस होता है जो कि ज्वाइन का होता है, और साथ में डुप्लीकेसी भी रिमूव कर देते हैं. गो फॉर रिलेशनशिप्स इफ यू कैन, इट हैज़ द सेम पर्पस एज ज्वाइन. Go for relationships if you can, as it has the same purpose as join, and it also remove duplicacy. तो इसका ये एडिशनल बेनिफिट है कि and it also removes duplicacy. फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, और सेकंड पॉइंट ये है कि it will make the tables less bulky. So basically we use joins. I'll just write here, we use joins when uniqueness is there, मतलब जिन कॉलम पे ज्वाइन करें उन कॉलम में यूनिकनेस हो. व्हेन यूनिकनेस इज देयर, use joins when uniqueness is there and level of details of details of both the tables is same, and level of details of both the tables is same. But not only this, it will make table bulky. If you use joint when uniqueness in a table of details of both table is same, बट ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि ये है कि इट मेक्स टेबल बल्की. ड्रॉबैक क्या है जॉइन का? इट मेक्स टेबल बल्की. ऑल्सो डुप्लीकेसी और बल्कीनेस, दो ड्रॉबैक है मेरे. इट विल मेक टेबल्स बल्की. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही थी, ठीक है. हमने यूनियन पढ़ा था ना, तो यूनियन में मैंने आपको बताया था कि दोनों जो मेरे कॉलम्स होते हैं उनके नाम से होने चाहिए, डेटा टाइप से होने चाहिए, तभी हमारा यूनियन जो है वो ढंग से हो पाता है. बट व्हाट इफ कॉलम के नाम भी डिफरेंट हो, अंदर का डेटा भी डिफरेंट हो? तो एसक्यूएल और पाइथन में तो ऐसे केस में यूनियन करने में एरर ही आ जाएगा, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं होगा. ठीक है, ठीक है. तो एसक्यूएल और पाइथन में तो इस केस में एरर ही आ जाएगा. बट टैबलो में क्या होगा? टैबलो में इस केस में एरर नहीं आएगा. उसमें ये होगा कि जैसे कि यहाँ पे 4-8 लिखा, अब मैं इन दोनों टेबल का अगर यूनियन कर रही हूँ तो ये 4 कॉलम बन जाएंगे. एरर नहीं आता टैबलो के केस में. तो यहाँ पे मेरे 4 कॉलम बन जाएंगे, फ़्लाइट आईडी, पैक्स, पैसेंजर आईडी एंड देन फ्लाइट कॉलम. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1A डैश डैश 2B डैश 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 एंड देन 4-8. सो ठीक है, तो ये मेरा
आउटपुट आ जाएगा यूनियन के केस में, अगर मान लो मैंने इन दोनों टेबल का यूनियन करने की कोशिश की। मुझे आपको थोड़ा सा बताना था। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। नाउ वी मीट इन अनदर वीडियो, अनदर सेशन। Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, please do subscribe to my channel. Thanks.